क्या ایلون مسک ایمان لے آئے؟ یہ پیغام آج ایمان والوں کے لیے اسپیشلی ہے. کیا ایلون مسک نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ گاڈ آلمائٹی از دا کریٹر؟ میں تو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ اس سرشٹی کا رچیتا ایک ہی ہے، سب کا مالک ایک ہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں خدا، اللہ سبحان و تعالیٰ، بھگوان، پرم پتا پرمیشور، گاڈ آلمائٹی. پر وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا. ہے ہائے ہلو نمستے جی، ست سری اکال، السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے. اور ایلون مسک دنیا کے سب سے امیر ترین انسان، ان کے جتنا پیسہ مالی دولت کسی کے پاس نہیں ہے. اور جب وہ اس بات کو اگری کر رہے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ گاڈ از دا کریٹر، تو ظاہر سی بات ہے کہ پوری دنیا ان سے انفلوئنس ہوتی ہے اور ان کی بات کو توجہ دیتی ہے اور سننا چاہتی ہے. اور یہ بات مجھے بہت بے حد اچھی لگی ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ہم لوگ اگر آج کانشیسنیس میں ہیں تو ایسے ہی نہیں ہم دنیا پر آ گئے. کسی ایک شکتیشالی طاقت، یا میں یہ کہوں سب سے پاورفل جو انرجی ہے، انہوں نے ہمیں کریٹ کیا اور ہمارے اندر ایک کانشیسنیس بھیجی ہے. آج ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں تو ایک ایک شبد سوچ سمجھ کر کے بولتے ہیں. تو یہ سوچ ہمارے اندر کس نے وکست کری؟ خیر آئی ہیو اے لاٹ ٹو سے، کیونکہ میں بے حد خوش ہوں یہ سن کر کے ایلون مسک کا رجحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اسپیشلی ینگسٹرز آر گوئنگ ٹو گیٹ انفلوئنسڈ. خوشی ہوتی ہے یہ سن کر کے کہ گاڈ آلمائٹی نے جس انسان کو اتنی پاور دی، اس نے سچائی کو ایکسیپٹ کرا، اور آج ینگسٹرز اس سچائی کی طرف ایٹ لیسٹ ٹرن تو ہوں گے. وہ ٹنل کے اندر سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے روبرو تو ہوں گے. ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. پیارے دوستو، یقیناً ہر ایسا شخص جو ذرا سا بھی عقل اور شعور رکھتا ہوگا، وہ جب بھی اس بے شمار رازوں سے بھری کائنات کو دیکھے گا تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال پیدا ہوگا کہ آخر اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ دنیا کا امیر ترین شخص ایلون ماسک، جس سے پوچھا گیا کیا آپ خالق کو مانتے ہیں، تو ایلون ماسک جو پہلے خود کو ایگنوسٹک کہہ چکا تھا نے جواب دیا. Well, something created the universe, or the universe is, here. How did it come to be? Well, we can say step by step based on the archaeological evidence, the fossil record, and what we know of physics, how we came to be at this point. But that doesn't explain how the universe came to exist in the first place. Like, how do molecules have consciousness and feelings? اور وہ کون ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے؟ ہم مسلمانوں کا یہ پختہ یقین ہے کہ اس نظام کو بنانے اور چلانے والی ذات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ذات اللہ کی ہے. اس عقیدے کو دیکھ کر غیر مسلم بھی اپنی تحقیقات میں مگن ہیں اور اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہزاروں تجربے کر رہے ہیں، جن سے صرف ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ اسے بنانے والی کوئی عظیم ذات ہے. انہی ثبوتوں کو دیکھ کر آہستہ آہستہ غیر مسلم بھی اسلام کی جانب راغب ہوتے نظر آ رہے ہیں، جن میں سے ایک نام ایلن مسک کا ہے، جو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص ہے. ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی ایلن مسک ہی ہے، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایلن مسک اسلام کی جانب راغب ہو رہا ہے، اور جب اس سے اس کائنات کو بنانے سے متعلق سوال کیا گیا تو اس نے کیا جواب دیا. Went from a bunch of hydrogen gas to complex molecules, and then an assemblage of complex molecules like ourselves that can feel and talk and think. So, I mean, just if you leave hydrogen out long enough, it starts talking to itself, basically, is what happened here. So where along that path from a bunch of hydrogen molecules to humans, where did consciousness start? پیارے ساتھیوں، ایلن مسک 28 جون 1971 کو جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوا. آج کل ایلن مسک ایک مشہور کینیڈین امریکن بزنس مین، انجینئر، معجد اور سرمایہ کار ہے. مکمل طور پر بجلی سے چلنے والی کار، دوبارہ سے استعمال کے قابل راکٹ کی تیاری اور اس جیسے کئی بڑے بڑے انقلابی منصوبوں کے پیچھے ایلن کا ہی انقلابی ذہن کار فرما ہے. ایلن نہ صرف اسپیس ایکس اور ٹیسلا موٹرز میں CEO ہے، بلکہ سولر سٹی کا چیئرمین اور پے پال زپ2 کا شریک بانی بھی ہے. ان سب منصوبوں سے بڑھ کر ایلن مسک نے ہائپر لوپ کے نام سے ایک نئے تصوراتی ٹرانسپورٹ سسٹم کا منصوبہ بھی پیش کیا ہے، جس کی کامیابی کے بعد سفر کی دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوگا. اگر ایلن مسک کے مذہب کی بات کی جائے تو آج سے 4 سال پہلے جب ایک انٹرویو میں اس سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ خدا کے ہونے پر یقین رکھتے ہیں، تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، وہ خدا کو نہیں مانتا. جب اس سے دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ کے تمام قریبی ساتھی یہودی ہیں تو کیا آپ بھی یہودی ہیں، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، میں یہودی نہیں ہوں بلکہ ایک ملحد ہوں.
इसलिए वो किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करता। दोस्तों, ये इंटरव्यू एलन मस्क की जानिब से 2018 में दिया गया था, जब इसने खुदा को न मानने का कहा था। लेकिन जब यही सवाल इससे अभी कुछ अरसा पहले किया गया तो जवाब पहले की निस्बत खासा मुख्तलिफ था। इंटरव्यू करने वाले होस्ट ने जब एलन से सवाल किया कि क्या आप समझते हैं कि इस दुनिया को बनाने और इसका निजाम चलाने वाला कौन है, तो इसके जवाब में एलन मस्क का कहना था कि हाँ, मुझे अब लगता है कि जरूर इस कायनात को कोई चलाने वाला मौजूद है जो हम सबसे बड़ा है और हम सब इसके ताबे हैं। उसका मजीद कहना था कि मैंने अपने मुख्तलिफ मंसूबों और तजुर्बात से यह अखज़ किया है कि ये कायनात खुद ब खुद नहीं चल रही, बल्कि किसी के इशारों पर चल रही है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन हम सब पर नजर जरूर रखे हुए हैं। इस बयान के बाद इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि अब आहिस्ता आहिस्ता गैर मुस्लिम शख्सियात इस्लाम की सच्चाई को तस्लीम कर रही हैं और इंशाल्लाह इस पूरी दुनिया पर इस्लाम की हुक्मरानी होगी। नाज़रीन गिरामी, याद रहे कि 20वीं सदी के वस्त में साइंस की दुनिया में यह नुक्ता नजर राइज था कि कायनात हमेशा से है और ये हमेशा कायम रहेगी। इस नुक्ता नजर के मुताबिक साइंसदानों का कहना था कि कायनात मुकर्रा, जामिद और गैर मुतगय्यर मादे का मजमुआ है। ये नजरिया मेटलिस्ट फिलॉसफी पर मुश्तमिल है और ये पूरी कायनात को वजूद में लाने वाले खालिक के वजूद की नफी करता है। लेकिन 20वीं सदी के दौरान जैसे ही साइंस ने मजीद तरक्की की, इस नजरिए को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और 21वीं सदी के आते ही बहुत से तजुर्बात और मुशाहिदात के बाद जदीद तबीयत दान और मुफक्किर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कायनात की यकीनन कोई न कोई इब्तिदा थी और ये जामिद और गैर मुतगय्यर नहीं, बल्कि कायनात मुसलसल तहरीक के अमल से गुजर रही है। कायनात की इब्तिदा को कुरान करीम की इस आयत से वाज़े किया जा सकता है, वो अल्लाह आसमानों और जमीन का मुअज्जद है। सूरह इनाम। मौजूदा माहिरीन फल्कियात भी इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि पूरी कायनात काफी अरसा पहले होने वाले एक अजीम धमाके के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आई और उस अजीम धमाके या कायनात के वजूद में आने वाले वाक़े को बिग बैंग कहा जाता है। जबकि आज के दौर का पूरा साइंसी तबका इस बात से इत्तफाक करता है कि यह धमाका 15 अरब साल पहले वाहिद पॉइंट या नुक्ते से निकला था। इस बिग बैंग से पहले मादा, तवानाई और हत्ता के वक्त जैसी कोई चीज वजूद नहीं रखती थी। ये हकीकत जो कि हाल ही में जदीद तबीयत दानों ने दरियाफ्त की है, 1400 साल पहले कुरान में इसका ऐलान कर दिया गया था। 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म न होने के बराबर या अपने इब्तिदाई दौर में था, तब कुरान मजीद में कायनात के तौसी होने के अमल को बयान कर दिया गया था। तर्जुमा: आसमान को हमने अपने हाथों से बनाया है और यकीनन हम कुशादगी करने वाले हैं। इस आयत में वसी होने या कुशादगी के बारे में बात की गई है, यानी आसमान पहले ही बहुत वसी है, लेकिन हम इसको इससे भी ज्यादा वसी करने की ताकत रखते हैं और साइंस भी मौजूदा दौर में इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि कायनात मुसलसल तहरीक और तौसी के अमल से गुजर रही है। जैसा कि अमेरिका के माहिर फल्कियात हबल ने टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए दरियाफ्त किया कि सितारे और गैलेक्सीज एक दूसरे से हरकत कर रहे हैं। तबीयत के कानून के मुताबिक मुशाहिदे की मकाम की तरफ बढ़ने वाली रोशनी बनफशी रंग की होती है, जबकि मुशाहिदे के मकाम से दूर बढ़ने वाली रोशनी गहरी सुर्खी माइल रंगत में तब्दील हो जाती है। टेलीस्कोप की मदद से आसमान का मुशाहिदा करते हुए हबल ने दरियाफ्त किया कि अपने फासले के लिहाज से सितारे जो रोशनी खारिज करते हैं वो सुर्खी माइल रंगत की होती है, जिससे ये बात वाज़े होती है कि सितारे और गैलेक्सीज हर वक्त ना सिर्फ हमसे बल्कि एक दूसरे से भी दूर बढ़ रहे हैं। कायनात में हर शय का एक दूसरे से दूर हरकत करना दलालत करता है कि कायनात तौसी के अमल से गुजर रही है और ये हकीकत कुरान मजीद में उस वक्त बयान कर दी गई थी जब हबल टेलीस्कोप या इस जैसे दीगर टेक्नोलॉजी के आलात इजाद न होने के करीब भी न थे। और ये इसलिए कि कुरान उस रब का कलाम है जो कायनात का खालिक और हुक्मरान है। जैसा कि हमने बताया कि कायनात की इब्तिदा अजीम धमाके से हुई और इसके बाद से ये मुसलसल तौसी के अमल से गुजर रही है। साइंसदानों का कहना है कि एक वक्त आएगा जब कायनात का मास काफी सतह तक पहुंचेगा और कश्य शकल की बदौलत इसकी तौसी रुक जाएगी और वापस सुकड़ने के बाद कायनात खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और आखिर ऐसे नुक्ते पर पहुंच जाएगी जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। कायनात के इस खात्मे को बिग क्रंच का नाम दिया गया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तबीयत के प्रोफेसर का इस बारे में कहना है कि आज जो हम देख सकते हैं या नहीं भी देख सकते, सब कुछ प्रोटॉन से भी छोटे साइज में तबाह हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप एक स्याह सुराख के अंदर थे।
इसका जिक्र कुरान पाक में अल्लाह ताला यूं फरमाता है, जिस दिन हम आसमान को यूं लपेट लेंगे जैसे तोमार में औराक लपेट दिए जाते हैं, जैसा कि हमने अव्वल दफा पैदाइश की थी इसी तरह दोबारा करेंगे। ये हमारे जिम्मे वादा है और हम इसे जरूर पूरा करके रहेंगे। इस आयत मुबारका में औराक की मानन लपेट देने की बात की गई है, जो कि गौर तलब है। हम जानते हैं कि कागज को तय लगाकर लपेटा जाता है और तय ऐसी चीज की लगाई जाती है जो मुतवाजी हो। इस तरह पहले के साइंसदान इस बात पर यकीन रखते थे कि कायनात बैज़वी या गोल शक्ल की है, लेकिन 20वीं सदी के साइंसदान आइंस्टाइन ने यह नजरिया पेश किया कि हमारी कायनात मुतवाजी है और मलमल के कपड़े की मानंद है। कायनात की इब्तिदा और खात्मे के बारे में मौजूदा साइंस की तहकीकात 1400 साल पहले कुरान मजीद में दिए गए बयानात से मुकम्मल इत्तिफाक करती हैं। इसके बावजूद साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, कायनात और इसके अंदर छुपे राजों को इसके तख्लीक करने वाले खालिक और मालिक से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में हम इंसान साइंस की तहकीकात पर तो बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन कुरान में बयान किए गए मौजज़ात पर गौर व फिक्र नहीं करते। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, और उन लोगों ने जैसी कदर अल्लाह ताला की करनी चाहिए थी नहीं की। सारी जमीन कयामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और तमाम आसमान उसके दाने हाथ में लिपटे हुए होंगे। वो पाक और बरतर है हर चीज से जिसे लोग उसका शरीक बनाए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। मेरी तो आंखें नम हो गई हैं ये वीडियो देखकर कि जब दुनिया एक दिन ख़त्म हो ही जाएगी तो हम क्यों करते हैं गलत काम, तो हम क्यों ऐसे रास्ते पे चलते हैं जो अल्लाह के एकदम ऑपोजिट है। आप समझ रहे हैं, ये क्रिएशन अल्लाह सुब्हान व तआला की है, क्रिएटर वो है, उसने हमको इतना कुछ दिया और फिर भी हम ठेस पहुंचाते हैं उनकी बनाई हुई क्रिएशंस पे। आप समझ रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कभी भी नेचर के ऑपोजिट काम मत करो, हमेशा वही करो जो इस पूरी कायनात प्रकृति के साथ सिंक्रनाइज हो रहा हो, अलाइन हो रहा हो। जब भी आप कोई प्रोफेशन चूज करें अपनी लाइफ में तो सोच समझ के करिए कि क्या ये वातावरण को प्रदूषित कर देगा या ये वातावरण को सुसज्जित कर देगा। और एक और बात, भाई साहब ने कहा कि पूरी दुनिया पर एक दिन इस्लाम कायम हो जाएगा। मैं ये समझती हूँ कि इस्लाम इज़ अ वे ऑफ लाइफ और वो हमको यही सिखाता है कि हमें हर एक मज़हब के इंसान से मोहब्बत करनी है। कभी भी किसी मासूम के ऊपर इतनी सी भी खरोच आती है ना, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि एक मासूम का कत्ल मतलब पूरी इंसानियत का कत्ल। कभी भी अपने अंदर की इस मानवता को गायब मत होने देना दोस्त। और ये मत सोचना कि कोई गैर मुस्लिम है मतलब ये इंसान अच्छा नहीं है। अब क्योंकि मैं भी एक धार्मिक इंसान हूँ तो मैं जो सूडो धार्मिक इंसान हैं उनकी मेंटालिटी को समझती हूँ। वो सोचते हैं कि हम बड़ा ना धर्म को फॉलो कर रहे हैं, बट असलियत में वो उसके विपरीत काम कर रहे होते हैं। हमारा धर्म ही सबसे बेस्ट है, बाकी सब धर्म हमको कुछ अच्छा नहीं सिखाते। ये असलियत नहीं है। खुदा का पैगाम एक ही है, अल्लाह तो एक ही है, सृष्टि का रचयिता एक ही है, परम पिता परमेश्वर भगवान गॉड ऑलमाइटी एक ही है, इस कायनात का मालिक एक ही है। और उसने हमें यही सिखाया है, सब चैन शांति अमन प्यार से इकट्ठे होकर के रहो, खुश रहो और कभी किसी दूसरे जीव जंतु जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे को तकलीफ ना पहुंचाना मेरे दोस्त। इतनी सी भी चोट मत पहुंचाना दोस्त, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने बनाया है। चलिए मैं एक छोटे से कोट के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी कि गॉड इज़ ग्रेट मतलब अल्लाह अकबर एंड इलॉन मस्क अ बिग थम्स अप। एथिस्ट नास्तिक से आस्तिक होने वाली जर्नी बहुत क्रेजी होती है। आई हैव बिन थ्रू दैट एंड आई नो कि कितनी सारी फेजेस से वो गुजरे होंगे इस दौरान। चलो अल्लाह के घर देर है अंधेर बिल्कुल नहीं, हमेशा उजियारा है। और सारे एथिस्ट लोगों को मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई साहब देखो, तो इलॉन मस्क भी बोल रहा है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है। उनको इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है क्योंकि वो अमीर तरीन इंसान है, उन्होंने कितनी मेहनतें करी हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। पर फिर भी अल्लाह सुब्हान व तआला के दर पे कोई अमीर गरीब गोरा काला नहीं होता, उसके लिए हम सब इक्वल हैं। अल्लाह हाफिज़।